discussing on the aspect of God's purpose in our generation. और आपको याद होगा कि हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारी पीढ़ी में क्या है. That's a theme for our revival meetings. और ये हमारी जो पुनर्जीवन की जो सभाएं हैं उनका मुख्य विषय है. Overall general theme for all the 3 meetings. और ये जो तीनों दिन की सभाएं थी, ये तीनों दिनों की सभा का विषय था. We know that we are living during in very interesting times, very exciting times. और हम जानते हैं कि बड़े रोचक समय में हम जी रहे हैं. We are 2000 years toward the second coming of Christ than the first century Christians. Closer to the second coming than the first century Christians. और हम पहली शताब्दी में जो मसीही थे उनसे 2000 साल आगे जी चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के और नजदीक हैं. And therefore, when those people spoke with so much of fervor about second coming, how much more we should have the fervor for the second coming. तो इसलिए जब वो लोग दूसरे आगमन के बारे में इतनी जोश के साथ बोलते थे, तो हमें कितना ज्यादा उस दूसरे आगमन के बारे में जोश से बात करनी चाहिए. And the second coming means God's purpose for us is that number 1, we should be sharing the gospel. और दूसरे आगमन का मतलब है कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए ये है कि पहली बात हम सुसमाचार का प्रचार करें. As we discussed day before yesterday evening. जैसे हमने परसों शाम को बात करी थी. In 24th chapter of Matthew, verse 14, Jesus says. मत्ती के 24 अध्याय में 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बोला. And this gospel of the kingdom will be preached in the ends of the world as a testament to all nations, then the end will come. और राज्य का ये सुसमाचार सब राष्ट्रों में प्रचार होगा और तब अंत आएगा. The end will not come till the gospel preached to all the nations. और अंत तब तक नहीं आएगा जब तक ये सुसमाचार सब राष्ट्रों में प्रचार ना हो जाए. And last night we spoke about one more aspect of God's purpose in our generation. और पिछली बार हमने बात करी थी एक और उद्देश्य परमेश्वर का जो हमारी पीढ़ी में है. That was last night, and that is how the church is called to be a holy, set apart church. और वो कल रात को हमने बताया था कि कैसे कलीसिया की बुलाहट है कि वो पवित्र और अलग की हुई कलीसिया हो. 2 Peter 3rd chapter verse 9 to 14. दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 से 14 वचन. Because second coming, what kind of people ought you to be? Peter wrote to the churches in the region. और पत्रस ने उस जगह के जो कलीसियाएं थी उनको लिखा कि क्योंकि दूसरा आगमन होने वाला है, तुम्हें किस प्रकार के लोग होना चाहिए. You ought to live holy and godly lives. तुम्हें पवित्र और भक्ति का जीवन बिताना है. And this morning we're going to talk about one more exciting aspect of Christian life. और आज सुबह हम एक और मसीह जीवन का बड़ा रोचक पहलू है उसके बारे में बात करेंगे. An exciting aspect of church life, and that is manifesting the kingdom of God. और वो मसीही और कलीसिया के जीवन का भी बड़ा रोचक पहलू है कि कैसे हम परमेश्वर के राज को प्रकट करें. Manifesting the kingdom of God while living in a wicked and corrupt world. कैसे हम परमेश्वर के राज को प्रकट करें जब हम एक दुष्ट और भ्रष्ट संसार में जी रहे हैं. We're going to look into scriptures and see how today we are in the kingdom of God, those who believe in Jesus, and they can manifest the blessings of the kingdom of God. और हम आज देखेंगे वचन से किस प्रकार से आज जो हम प्रभु में हैं वो परमेश्वर का राज हमारे अंदर है और हम परमेश्वर के राज को अपने जीवन के द्वारा और उसकी आशीषों के द्वारा कैसे दिखा सकते हैं. The word kingdom in Greek is a word called basileia. और ये जो राज्य शब्द यूनानी भाषा में एक शब्द है जिसको बोलते हैं बेसिलाया, which means order of things. और जिसका मतलब है चीजों का क्रम. For example, when there's a king, there's a kingdom. उदाहरण के रूप से जब एक राजा होता है तो राज्य भी होता है. And the king decides how the people of this kingdom should live. और राजा ये फैसला करता है कि उसके राज्य के लोग किस प्रकार से जिएंगे. He decides the order of things. और वो हर चीजों का क्रम जो है वो नियुक्त करता है. And the Lord spoke about the kingdom of God. He said to Pontius Pilate, "My kingdom is not of this world." और प्रभु ने जब अपने परमेश्वर के राज के विषय में बात करी पिलातुस से, जब वो बोलता है कहता मेरा राज्य इस संसार का नहीं है. In John 18:36 he says, "My kingdom is not of this world." यूहन्ना 18:36 में वो कहता है मेरा राज्य इस संसार का नहीं है. So Pilate asked him, "Are you a king?" तो पिलातुस ने उससे पूछा क्या तू राजा है? He says, "It is as you say." उसने बोला जैसा तू कहता है. But my kingdom is not of this world. लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है.
In this world, Jesus spoke about the prince of this world being the devil. और इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने बात करा कि इस संसार का राजकुमार जो है वो शैतान है। If you look at John chapter 12 verse 31, he spoke about how the devil is the prince of this world. और यूहन्ना 12:31 आप देखेंगे तो वो देखते हैं कैसे उसने बात करी कि शैतान इस संसार का राजकुमार है। And say ever since man sinned against God, mankind came under control of the devil. और जब से मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य जाति शैतान के वश में आ गई। And when we follow the ways of the world, the order of things of this world, we are living by the standards of this world, by the kingdom of this world. और जब हम संसार के अनुसार चलते हैं तो संसार के क्रम के अनुसार, इस संसार के चीजों के अनुसार हम फिर चलने लगते हैं। In Ephesians chapter 2 verse 1 and 2 we read. इफिसियों उसका 2 अध्याय और 1 और 2 वचन में हम देखते हैं। The church in Ephesus, Paul writes. इफिसियों में जो कलीसिया है वहां पर पौलुस लिखता है, As for you, you are dead in your transgression and sins, in which you used to live when you followed the ways of the world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. और वो कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। So when you follow the ways of the world, we're actually following the devil. He is the prince of this world. तो अगर हम संसार की रीति पर चल रहे हैं तो वास्तव में तो हम शैतान के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि वो इस संसार का राजकुमार है। We didn't know that then. We did not know Jesus. जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो अब यह बात हमको नहीं मालूम थी। Galatians 3:22 says, Scripture declares the whole world is a prisoner of sin. गलतियों 3:22 कहता है, वचन हमें बताता है कि पूरा संसार जो है वो पाप का बंदी है। John wrote about himself and other fellow believers in 1 John 5:19. और यूहन्ना ने पहला यूहन्ना 5:19 में अपने बारे में और दूसरे विश्वासियों के बारे में लिखा, We are children of God and the whole world is under the control of the evil one. कि हम तो परमेश्वर की संतान हैं और पूरा संसार जो है वो उस दुष्ट के वश में पड़ा है। So people of this world are living according to standards of this world, order of things of this world, the basilia of this world. तो इस संसार के जो लोग हैं वो संसार के क्रम के अनुसार, संसार की रीति के अनुसार और इस संसार के बेसिलिया के अनुसार जी रहे हैं। But God's kingdom is different. लेकिन परमेश्वर का राज अलग है। Isaiah 55:8-9 says, God's ways and man's ways are different. God's thoughts and man's thoughts are different. इशाया 55:8-9 कहता है परमेश्वर के राज, परमेश्वर के मार्ग और मनुष्य के मार्ग अलग हैं, परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार अलग। His kingdom and world's kingdom are different. उसका राज्य और संसार का राज्य अलग है। The order of living according to God, different order of living according to the world. परमेश्वर की रीति पर जीना अलग बात है, संसार की रीति पर जीना अलग बात है। Now when the Lord walked this earth in flesh and blood, और जब प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर मांस और लहू में चला, he spoke about the kingdom of God as coming very soon. उसने बताया कि परमेश्वर का राज बहुत शीघ्र आने वाला है। About a certain man, he said in Mark 12:34, he is not far from God's kingdom. और एक व्यक्ति के विषय में मरकुस 12:34 में उसने बोला ये परमेश्वर के राज से दूर नहीं है। John the Baptist said in Matthew chapter 3 verse 2, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मत्ती 3:2 में बोला, repent for the kingdom of heaven is near. पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। Is near. It's not yet come, it is near. वो निकट है, आया नहीं है लेकिन नजदीक है। When the Lord Jesus Christ was ministering and when he talking to people, और प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, he taught them how to pray in response to their question. और उनके सवाल के जवाब में उसने उनको सिखाया कि वो प्रार्थना कैसे करें। We call this the Lord's Prayer. और हम उसको बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना। In Matthew chapter 6 verse 9, he begins by saying, Our Father who art in heaven. मत्ती 6:9 में वो इस प्रकार से शुरू करता है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, Hallowed be thy name. तेरा नाम पाक माना जाए, Thy kingdom come. तेरा राज आए, Let your kingdom come. तेरा राज को आने दे। We want your kingdom to come. हम चाहते हैं कि तेरा राज आए।
Now, till that point of time, the people are not following Jesus, as I told you, were under the devil's control. They're following the kingdom of this world. और मैंने आपको बताया जिस उस समय तक जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे थे, वो संसार के वश में थे, संसार की शैतान की रीति पर चल रहे थे. In the same prayer the Lord prescribed, he also said for them to pray. और उसी प्रार्थना में जो प्रभु ने सिखाया, उसने उनसे बोला इस प्रकार भी प्रार्थना करो. Matthew 6:13. मत्ती 6:13 में, Lead us not into temptation, but deliver us from evil. हमें परीक्षा से बचा और बुराई से बचा. Now, the word deliver is a Greek word called raiomai, which means rescue, chutkara. और ये जो बचाने वाला शब्द है, ये एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है छुड़ा लेना. And then he says, deliver us from evil. The word evil is a Greek word called porneros, which also means the evil one. और दुष्टता से बचाने का वक्त मतलब है, ये एक यूनानी भाषा के शब्द पोर्नेरो, जिसका मतलब है कि दुष्ट जन. So it's not just evil, but the evil one who's controlling the mankind. तो ये सिर्फ दुष्टता से बचाना नहीं है, उस दुष्ट जन से भी बचाना है जो इस संसार को अपने वश में किए हुए है. In other words, this prayer is, as long as I'm not delivered from the evil one, how can I face temptation? और उसका दूसरे शब्दों में प्रार्थना कर रहा है कि जब तक मैं इस दुष्ट जन से बचाया नहीं जाऊं, मैं परीक्षा का सामना कैसे कर पाऊंगा. Don't leave me in temptation, rather deliver me from the evil one. मुझे इस परीक्षा में ना पड़ने दे, लेकिन इस दुष्ट जन से मुझे बचा. And this deliverance happened on the cross of the Lord Jesus Christ. और ये जो छुड़ौती थी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर हुई. 1 John 3:8 is written about Jesus Christ coming into the world. पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के संसार के आने के विषय में. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. क्योंकि जो परमेश्वर का पुत्र संसार में इसलिए आया कि शैतान के काम को नष्ट कर दे. He came to set the captives free, set us free from the evil one. और जो बंदी हैं उनको दुष्ट जन से आजाद करा दे. To the Jews that just come to believe upon him, Jesus told them in John 8:31-32. और यो यहूदी प्रभु यीशु मसीह का पर विश्वास कर रहे थे और उनको प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:31-32 में बोला, If you hold on to my teaching, you are really my disciples. You will know the truth. The truth will set you free. अगर तुम मेरी आज्ञाओं को पकड़े रहोगे तो तुम वास्तव में मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा. They didn't understand what he meant by freedom. उनको नहीं मालूम था कि स्वतंत्रता का क्या मतलब है. They say we're Abraham descendants, have never been slaves of anybody. वो कहते हैं हम तो इब्राहिम के वंशज हैं, हम तो कभी किसी के बंदी हुए ही नहीं. They were thinking he's talking about slavery to people, but he was talking about slavery to sin and to the evil one. वो सोच रहे थे कि ये बात कर रहा है किसी लोगों के बंधन में होना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा था पाप और उस दुष्ट जन के बंधन में होने की. If he who sins is a slave to sin, I've come to set you free from that slavery. वो जो पाप करता है वो पाप का बंधुआ है, मैं आया हूं ताकि तुम्हें पाप से आजाद करा दूं. When the Lord Jesus Christ shed blood on the cross, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर खून बहाया, not only he delivered us from sin, delivered us from the evil one. ना सिर्फ उसने हमें पाप से छुड़ाया, लेकिन उस दुष्ट जन से भी छुड़ाया. He gave us eternal life. उसने हमें अनंत काल का जीवन दिया. The promise of abundant life if you live for him. और एक भरपूरे के जीवन का वायदा अगर हम उसके लिए जीते हैं. And by the work of Christ on the cross, he brought us into his kingdom. और मसीह के जो क्रूस के ऊपर काम के द्वारा वो हमें उसके राज्य में लाया. Now in the letter of Paul to Colossians in chapter 1, 13-14 we read. और कुलुस्सियों को जो पौलुस ने पत्री लिखी 1 अध्याय उसका 13-14 वचन में, For he has rescued us from the dominion of darkness and has brought us to the kingdom of the Son he loves, in whom the redemption, the forgiveness of sins. क्योंकि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमने छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है. It's in past tense. He has brought us into his kingdom. और ये भूतकाल की बात कर रहा है कि हमको अपने राज में वो ले आया है. We have been rescued from the evil one. The word used for rescue is the same Greek word raiomai in the Lord's Prayer. और वो जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि हमें दुष्ट जन से छुड़ा लिया है, यूनानी भाषा का वही शब्द रायोमा
जो वहां पर इस्तेमाल किया गया था। See, now it's in the past tense. He has rescued us completely. और वो भूतकाल की बात कर रहा है कि वो हमें पूरी रीति से छुड़ा चुका है, From the dominion of darkness. अंधकार के राज्य से छुड़ा लिया है। The whole realm of darkness we've been rescued from, and now we are in the kingdom of God. और अंधकार के पूरे साम्राज्य से हमको छुड़ा कर और अब परमेश्वर के राज में लाया गया है। I wonder how many Christians realize we are now in the kingdom of God. और मैं सोचता हूं कि कितने मसीह इस बात को समझते होंगे कि अब हम परमेश्वर के राज में हैं। He has rescued us from the devil, and we can follow the Lord freely. उसने हमें शैतान से छुड़ा लिया है और हम पूरी आजादी से परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। Now, having come into this kingdom, we are called to live by the standards, by the order of things, by the basilia of our King of Kings and Lord of Lords. और अब क्योंकि हम उसके राज में लाए गए हैं, हमसे आशा की जाती है कि उसके स्तर, उसके क्रम के अनुसार और उसके उस बेसिलिया के अनुसार, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, उसके अनुसार हम जिएं। We no longer live for the world, we live for Jesus. अब हम संसार के लिए आगे से नहीं जीते, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं। In fact, the word church, ecclesia, basically means called out to follow Jesus. Called out, summoned people. और ये जो चर्च, एक्लीसिया जो शब्द है, उसका मतलब ही ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो बुलाए गए हैं, निकाले गए हैं कि परमेश्वर के पीछे चलें। Interesting, the word in Hindi is kalesia and Greek is ecclesia. और अद्भुत बात है कि यूनानी भाषा में एक्लीसिया बोलते हैं, हिंदी में कलीसिया बोलते हैं। And we are all drawn out of the world to follow Jesus. और हम सब संसार से बाहर निकाले गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। We can't live by the standards of this world anymore. We live for Jesus. अब हम इस संसार के स्तर के अनुसार आगे से नहीं जी सकते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। You look at John chapter 15, 18 to 20, we read. अगर यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 15 से 18 अगर हम देखें, 18 से 20, sorry. 15 chapter, 18 to 20. 15 अध्याय उसका 18 से 20। If the world hates you, keep in mind it hated me first. यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो याद रखना कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर रखा है। If you belong to the world will love you as its own. यदि तुम संसार के होते, वो तुमसे अपने समान प्रेम रखता। As you don't belong to the world, I've chosen you out of the world. परंतु क्योंकि तुम इस संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। That's why the world hates you. इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। No servant greater than the master. और कोई दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। If they love me, they will love you. If they hate me, they will hate you. अगर वो मुझसे प्रेम करते तो तुमसे भी प्रेम करते, मुझसे घृणा करी तुमसे भी घृणा करेंगे। We don't belong to the world anymore. अब तुम इस संसार के नहीं हो, We belong to Jesus. तुम प्रभु यीशु मसीह के हो। Now, there are some Christians who tell me, I never belong to the world. I belong to myself. I live by my standards. और कुछ मसीह लोग मुझसे बोलते, मैं कभी संसार का तो था ही नहीं, मैं तो It's अपना ही हूं। It's my life. वो कहते हैं ये मैं तो अपने हिसाब से जीता हूं, ये मेरा जीवन है। I never live for other people. I live for myself. मैं कभी दूसरों के लिए नहीं जीता हूं, अपने लिए जी रहा हूं। But even there, I got bad news for you. You don't belong to yourself. लेकिन वहां पर मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है कि आप अपने भी नहीं हैं। In 1 Corinthians 6 chapter 19-20 we read. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19-20 में हम पढ़ते हैं। Do you not know your body is a temple of the Holy Spirit? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा जी का मंदिर है, Who is in you? जो तुम्हारे अंदर रहता है, Whom you received from God. जिसको तुमने परमेश्वर से पाया है। You are not your own. तुम अपने नहीं हो, You are bought at a price. तुम एक दाम देके खरीदे गए हो। Therefore, honor God with your body. इसलिए परमेश्वर को अपनी देह के द्वारा महिमा दो। We don't belong to the world anymore, Christians. We don't belong to ourselves. We belong to Jesus because He purchased us by His blood. और हम जो मसीही हैं अब संसार के नहीं हैं, हम अपने नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं क्योंकि उसने अपना खून बहाकर हमें खरीदा है। Because we belong to Him, we are called to live for Him. और क्योंकि हम उसके हैं, इसलिए हमारी बुलाहट है कि हम उसके लिए जिएं। One reason why He died for us on the cross was that we live for Him. और एक कारण क्यों वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, वो ये था कि हम उसके लिए जिएं। 2 Corinthians 5:15 Paul writes. दूसरा कुरिन्थियों 5:15 में पौलुस लिखता है, And He died for all, that those who live will no longer live for themselves,
but for him who died for them and was raised again. और वो उस और सबके लिए मरा ताकि अब वो जो जीवित हैं वो अपने लिए ना जिए लेकिन उसके लिए जिए जो सबके लिए मरा और अब जीवित है. We must understand our calling. Every one of us as Christians are called to live a holy life, set apart life, and live by the kingdom principles, not the worldly principles. और हमें अपनी बुलाहट को समझना है. हम में से जितने भी मसीही हैं हमें बुलाया गया है कि हम पवित्रता का जीवन, अलगाव का जीवन और राज्य के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को जिएं. Let's go to the book of Revelation in chapter 5. अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अगर हम 5 अध्याय में जाएंगे, We look at the 4th and 5th chapter of Revelation. The whole 2 chapters are about worship. और प्रकाशित वाक्य अगर आप 4 और 5 अध्याय को देखेंगे, दोनों अध्याय आराधना के बारे में है. The 4 living creatures worshiping God वो 4 जीवित प्राणी प्रभु की आराधना कर रहे हैं in words. शब्दों के द्वारा. The 24 elders worshiping God with words. और 2400 प्राचीन प्रभु की परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं शब्दों के द्वारा. The 4 living creatures and the 24 elders worshiping in song. और चारों प्राणी 2400 प्राचीन गीत के द्वारा प्रभु की आराधना कर रहे हैं. All the angels worshiping in song. सारे स्वर्गदूत गीतों के द्वारा आराधना कर रहे हैं. And all creation from all nations, peoples, all worshiping God together. और सारे राष्ट्र जो है सब भाषाओं से कुल से सब एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं. 5 worship instances, worship events. और वहां पर 5 आराधना की घटनाएं हो रही हैं. Let's look at the third event. जो तीसरी घटना है उसको देखें. Where the 24 elders and the 4 living creatures together worship the Lamb of God in song. जहां पर वो चारों प्राणी 2400 प्राचीन उस परमेश्वर के मेमने को गीत के द्वारा आराधना चढ़ा रहे हैं. The book of Revelation chapter 5, 9 and 10 is written how they all worship God, worship the Lord. प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 10 में लिखा है किस प्रकार से उन्होंने प्रभु की आराधना करी. When the Lamb of God takes a scroll of judgment from the hand of the one, the throne. और जब वो परमेश्वर का मेमना जो सिंहासन पर बैठा है उससे वो न्याय का जो पुस्तक है उसको हाथ से ले लेता है. 24 elders and 4 living creatures sing to the Lamb of God. और वो चारों प्राणी 2400 प्राचीन उस मेमने के लिए परमेश्वर के मेमने के लिए गीत गाते हैं. You are worthy to take the scroll and open the seals. क्योंकि तो उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के योग्य है. For you were slain, and by your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग को और जाति में से अपने लिए मोल लिया है, खरीदा है. And made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they'll reign on the earth. और उनको हमारे परमेश्वर के लिए राज और याजक बना दिया है कि इस पृथ्वी पर राज्य करें. You made them a kingdom and priests to serve our God. We are a kingdom. We are priests of God Most High, believers in Jesus. और वो कहता है उसने हमको परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बना दिया है परमेश्वर की सेवा करने के लिए. They begin to enjoy this kingdom as they choose to live for Jesus. और इस राज्य का हम आनंद उठाने लगते हैं जब हम ये चुनाव करते हैं कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा. So what is the kingdom of God then? तो ये परमेश्वर का राज फिर क्या है? 1 Corinthians 4:20 says, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. और पहला कुरिन्थियों 4:20 कहता है कि परमेश्वर का राज्य जो है ये बातों की विषय नहीं है लेकिन सामर्थ्य की बात है. Now, the power of God is available for every believer in Jesus. और ये जो परमेश्वर की सामर्थ्य है हर विश्वासी जो मसीह में है उसके लिए उपलब्ध है. In Ephesians 6:10, Paul writes, be strong in the Lord and in his mighty power. इफिसियों 6:10 में पौलुस लिखता है कि परमेश्वर में बलवंत बनो और उसकी बड़ी सामर्थ्य में बलवंत बनो. By ourselves, all of us are weak. हम खुद से हम में से हर एक कमजोर हैं. But the Lord Jesus Christ anoints us with the Holy Spirit. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा जी का अभिषेक देता है. Anointing means pouring out. और अभिषेक करने का मतलब है उंडेल देना. When he pours the Holy Spirit upon us, we are endowed with power. और जब वो अपनी पवित्र आत्मा जी हमारे ऊपर उंडेलता है तो हमें आत्मा की भरपूरी मिल जाती है. In Acts 1:8 says, you will receive power and the Holy Spirit comes upon you and you'll be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria and the uttermost parts of the earth. और फिर तो 1:8 में कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा जी पाओगे तब तुम्हें सामर्थ मिल जाएगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे यहूदिया यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक. It's the Lord Jesus Christ who pours out the Holy Spirit upon us today.
और वो आज वो प्रभु यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा जी हमारे ऊपर उंडेलते हैं। After he went back to God the Father, और जब वो परमेश्वर पिता के पास वापस चला गया उसके बाद he had received from the Father the promised Holy Spirit, और उसने वो वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा जी को परमेश्वर पिता से पाया, whom he pours out upon us. और जो वो हमारे ऊपर उंडेलता है। And when the anointing comes upon us, we are endowed with God's power to live a life that pleases God. और जब वो सामर्थ हमारे ऊपर आती है तो हमें वो सामर्थ मिल जाती है कि हम परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जिए। The primary purpose of God empowering us is for us to live for Him and to say no to temptation. और सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है परमेश्वर का हमको बचाने के लिए, ताकि हम उसके लिए जिए और परीक्षा को हम ना बोलें। Now we all face temptations in this world, इस संसार में हम सब परीक्षाओं का सामना करते हैं, but by the word of God, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा and the faith that God gives us, और उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर हमें देता है, we're empowered to be able to live a life that pleases God. हमें सामर्थ मिलती है कि हम ऐसा जीवन बिताएं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन। All of us can experience this power simply because we are in His kingdom. Kingdom of God is power. और हम सब इस सामर्थ का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का राज ही खुद सामर्थ है। And not only that, not only Jesus Christ has delivered us from the evil one, He has given us authority over the evil one in His name. और ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हमको उस दुष्ट जन से बचाया है, लेकिन उसके नाम के द्वारा उसने हमें उस दुष्ट जन के ऊपर अधिकार दिया है। In fact, the word adhikar is a very appropriate word for power because the Greek word is exousia, which means vested authority. और ये जो अधिकार हिंदी में शब्द इस्तेमाल होता है, ये सामर्थ्य के लिए सही शब्द है, क्योंकि जो यूनानी भाषा का शब्द एक्सोसिया मतलब कि अधिकार सौंप दिया गया है। For example, in Luke chapter 10, 18, 19, we read, लूका 10 अध्याय 18-19 में हम पढ़ते हैं, the Lord says to the disciples, 70 disciples, और प्रभु अपने उन 70 चेलों को बोलता है, I saw Satan fall like lightning from heaven. मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देखा। I have given you authority to trample on snakes and scorpions, over all the power of the enemy, nothing will harm you. मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। Now some Bibles translate that as I have given you power over the power of the enemy. और कुछ बाइबल में इस प्रकार से अनुवाद लिखते हैं कि मैंने तुम्हें दुश्मन की ताकत के ऊपर ताकत दी है। But the first word, it's not takat, it is actually adhikar. It's authority. लेकिन जो सही शब्द पहला शब्द है, तुम्हें अधिकार दिया है मैंने। I have given you authority over all the power, the dunamis, the Greek word dynamis, from the word you get dynamite, over the enemy. That means you and me, as just believers in Christ, have been given power to win victory over the devil in Jesus' name. तो उसका जो सही शब्द है कि मैंने जो तुम्हें अधिकार दिया है दुश्मन की ताकत के ऊपर, यूनानी भाषा का शब्द डुनामिस, उसके ऊपर सारी अधिकार दिया है, उसकी सारी सामर्थ्य के ऊपर। We must know we have the authority and we have this power. हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ये अधिकार है, हमारे पास ये ताकत है। That's when we can live a victorious Christian life. और तब ही हम एक जयवंत मसीही जीवन जी सकते हैं। Now, when you have power to say no to temptation and we live a life that pleases God, what happens is also the devil gets more active and troubles us through suffering and trials. और जब हमारे पास ये सामर्थ हो जाती है कि हम जो पाप को ना बोलें और दुष्ट के ऊपर जयवंत हो जाएं, तो हम जब जयवंत जीवन जीने लगते हैं तो शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है और हमारे जीवन में पीड़ा भी आती है, सतावट भी आती है। If he can't tempt us to sin, he will test us by giving us troubles in life. अगर वो हमें पाप के लिए परीक्षा में नहीं डाल पा रहा है तो हमें परखता है हमारे जीवन में मुश्किलों को लाकर। Whether it's a test or a temptation, God's faithfulness is so amazing, He'll give us the strength to face the test and the temptation. चाहे वो परीक्षा हो, चाहे परखना हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इतना अद्भुत है, वो हमें सामर्थ देगा ताकि हम उस परीक्षा और परखने के ऊपर जयवंत हो जाएं। In fact, the Greek word for both test and temptation is the same word. It's called pyrasmos. और यूनानी भाषा में जो परीक्षा और परखने के लिए वो एक ही शब्द है, पायरोस्मोस। And in 1 Corinthians 10:13, Paul writes, पहला कुरिन्थियों 10:13 में पौलुस लिखता है, God is faithful. He will not allow you to be tempted or tested
more than you can bear. But every temptation is a way out. You can stand up under it. परमेश्वर विश्वास योग्य है, तुम्हें किसी भी ऐसी परीक्षा या परखने जाने में नहीं डालेगा जो तुम्हारी सामर्थ्य से परे है, लेकिन हर परीक्षा या परखने जाने के द्वारा तुम्हारे लिए मार्ग भी निकालेगा ताकि तुम उसमें से जयवंत होकर निकल सको. So we are in the kingdom of God today. तो आज हम परमेश्वर के राज्य में हैं. We can experience God's kingdom and God's power. हम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं. With that power, you can say no to temptation. और उस सामर्थ्य के द्वारा हम परीक्षा को ना बोल सकते हैं. Then when you obey God, you will face difficulties. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हम मुश्किलों का सामना करेंगे. And the same power is given to us also to rise above difficulties, to reign in life. और वही सामर्थ्य हमको ये भी दी गई है कि हम मुश्किलों के ऊपर उठकर अपने जीवन में राज्य करें. Take for example the Apostle Paul writing to Timothy. और उदाहरण के रूप से लीजिए कि जब पौलुस प्रेरित जो है तिमोथियस को जब वो लिखता है, In 2 Timothy chapter 1 verse 8 he writes, दूसरा तिमोथियस उसके 1 अध्याय और 8 वचन में वो लिखता है, Don't be ashamed to testify about our Lord or ashamed of me as prisoner. इसलिए तुम हमारे प्रभु की गवाही देने और मुझ उसके कैदी से लज्जित ना हो, But join with me in suffering for the gospel by the power of God. लेकिन उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार उस सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाने में सहभागी हो जा. Can you imagine Paul is saying that you are facing difficulty, don't be ashamed to testify about me, don't be ashamed about our Lord. Rather, face the suffering because of the gospel by the power of God. और वो कह रहा है कि तुम्हें मुश्किल हो रही है मेरे कारण, सुसमाचार के कारण, उस पे लज्जित मत हो, लेकिन उन मुश्किलों का सामना तुम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा करो. Today the people are so scared about possible persecution, possible temptation, possible this, possible that. But we forget that when difficulties come, when trials come, temptations come, God's power is available. और आज हम इतना डरते हैं कि सतावट आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं, सतावट आती है, तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए उपलब्ध है. Difficulties may not go immediately. मुश्किलें हो सकता है तुरंत जाएंगी नहीं. Very often they don't go. कई बारी जाती भी नहीं है. But power will come. लेकिन सामर्थ्य आ जाएगी. That's why Paul writes to Timothy and says in 2 Timothy 4:5. इसीलिए पौलुस जब तिमोथियस को लिखता है दूसरा तिमोथियस 4:5 में, Endure hardships. कहता है कि दुख का, मुश्किलों का सामना कर. When hardships come, we always say, oh, take it away, take it away, take it away. और जब मुश्किलें आती हैं तो हम बोलते हैं प्रभु जी इसको हटा लें, हटा लें. God give us strength to endure hardships. परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा उन मुश्किलों का सामना करने के लिए, सहने के लिए. In the last days, there will be far more difficulties, far more persecution will be there. और अंत के दिनों में तो सतावट बहुत बढ़ जाएगी और ज्यादा मुश्किलें होंगी. Wickedness will increase. दुष्टता बढ़ जाएगी. In fact, in Matthew 24 chapter verse 12, Jesus says, because the increase of wickedness, the love of most will grow cold. और मत्ती 24:12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दुष्टता के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा. But praise God, when wickedness increases, grace abounds. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जहां दुष्टता बढ़ती है, अनुग्रह भरपूरी से मिलता है. Romans 5:20 says, where sin increases, grace abounds. रोमियो 5:20 कहता है जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह भरपूरी से मिल जाता है. In this generation, God's will is that we have difficulties, but in the difficulties we'll have His power. और इस पीढ़ी में परमेश्वर की इच्छा है कि मुश्किलें तो होंगी, लेकिन उन मुश्किलों के बीच में हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ्य है. In the first evening, we spoke about the things going to happen in the last days, as recorded in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. और पहले शाम को हमने दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय और उसका 1 अध्याय नहीं, 2 Timothy chapter 1 to 5. तीसरा अध्याय 1 से 5 वचन में जो अंत के दिनों में क्या बातें होंगी उसके विषय में हमने बात करा था. It says in terrible times in the last days. वहां लिखा है कि अंत के दिनों में बड़े भयंकर समय होंगे. And verse 5 says about the people of God. और 5 वचन कहता है परमेश्वर के लोगों के विषय में, they'll have a form of godliness but deny His power. वो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी सामर्थ्य का इनकार करेंगे. Denying the power of God. God's people deny the power of God. They have a form of godliness. और परमेश्वर की सामर्थ्य का इनकार करेंगे. परमेश्वर का लोग जो हैं वो परमेश्वर की सामर्थ्य का इनकार कर रहे हैं, सिर्फ भक्ति का भेष धरा हुआ है. They have all the rituals, all the
paraphernalia, the traditions of the churches, but no power because they don't believe in that they are in the kingdom of God. और वो उनके पास सारा रीति रिवाज होगा, कलीसियाओं में जो होता है सब कुछ दिखावा, सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ नहीं होगी क्योंकि उसका इनकार कर रहे हैं. राज में नहीं है, ये विश्वास कर रहे हैं. Is anyone else got is a co-host? Could someone read in 2 Timothy 3rd chapter verse 1 to 5? Maybe you could read in Hindi, brother. Just first 5 verses. Yeah. Read slowly. Everyone follow slowly. दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 1 से 5 में पढ़ूंगा आपके लिए. पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे. वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे. ऐसों से दूर रहना. Now what Brother Sanjeev just read looks like the newsreader of the morning newspaper. भाई संजीव ने जो पढ़ा ऐसा लग रहा है कि सुबह में जो समाचार सुनाते हैं उस प्रकार की न्यूज सुना रहे हैं. Or TV news reading out. That's what happening today in the world. और ऐसा लग रहा है हम टीवी की न्यूज सुन रहे हैं सुबह सुबह. ऐसे ही हो रहा है, यही सब संसार में हो रहा है. Please don't think all the problems will go away tomorrow. It will not go away. But as God's people, we'll have the strength to face the difficulties. ये मत सोचिए कि कल सुबह सारी समस्याएं चली जाएंगी. समस्याएं नहीं जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारे पास सामर्थ होगी कि हम इनका सामना कर सकें. 2 Thessalonians 3:3 says, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 कहता है, God is faithful. He will strengthen you and protect you from the evil one. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, तुम्हें उस दुष्ट जन से वो बचा के रखेगा. So we can have strength to resist temptation and strength to face difficulties that come through obedience, because of obedience. तो हमें सामर्थ होगी कि हम मुश्किलों का सामना कर सके, परीक्षाओं का जो कठिनाई आती उनका भी सामना कर सकें. It's only because of the grace of God. और ये सब सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है. Wickedness increases, but grace abounds. दुष्टता बढ़ती है, लेकिन अनुग्रह और भरपूरी से बढ़ जाता है. And by receiving grace, we will reign in life. We will be people who reign in life. और अनुग्रह को पाने के द्वारा हम वो लोग होंगे जो हम जीवन में राज्य करेंगे. Romans 5:17 says, रोमियो 5:17 कहता है, if by the trespass of one man death reigned to that one man, अगर एक मनुष्य के पाप के कारण और उस व्यक्ति के एक पाप के कारण मृत्यु सबके ऊपर राज करने लगी, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through one man, Christ Jesus. तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज करेंगे. So in this world, we can reign over every problem of the world by receiving grace from God. तो इस संसार में, इस संसार की हर समस्या के ऊपर हम राज कर सकते हैं परमेश्वर से सामर्थ पाने के द्वारा. So kingdom of God is power, and today we are in God's kingdom. You can experience power. तो परमेश्वर का राज्य जो वो सामर्थ की बात है, आज हम उस सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं. So Romans 14:17 says, रोमियो 14:17 कहता है, one more aspect of God's kingdom. परमेश्वर का राज का एक और पहलू, For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज खाने और पीने की बात नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद की बात है. And verse 18 says, for whoever serves Christ in this way is pleasing to God and also approved by people. और 18 वचन कहता है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में भी ग्रहण योग्य ठहरता है. Now we're coming to the aspect of how when we are enjoying God's kingdom and obeying God, we will manifest this peace and joy to the outside world who's searching for peace, who's searching for joy, searching for righteousness. और अब हम उस पहलू में आ रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के राज में बने हुए हैं, उसकी सामर्थ का हम अनुभव कर रहे हैं, तो हम उस शांति और आनंद का अनुभव को अपने अंदर से दिखाएंगे, उस शांति और आनंद को जिसको ये संसार आसपास में खोज रहा है, ढूंढ रहा है. In fact, when the pastor read to us today in Hindi passage, it was not Shanti, it was a mel milap, she said. Yeah, isn't it? Yes. It was very accurate, mel milap, because the word peace actually means oneness. It's a reconciliation.
और यहाँ पर जो शब्द लिखा गया मेल मिलाप, वो सही शब्द है, क्योंकि जो शांति का शब्द है वो तो एकता की बात करता है। The word peace in Greek is a word called eirene, which means oneness. और जो यूनानी भाषा में शांति का शब्द है वो आइरेने है, उसका मतलब है एकता। And through the work of Christ on the cross, all those who believed in his work on the cross have received peace. और मसीह के क्रूस के ऊपर उस काम के द्वारा जिन्होंने उसके उस काम के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने शांति पाई है। Who have received Christ have received peace. जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है उन्होंने शांति को भी पाया है। We are now one with God. We have peace with God. अब हम परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं, परमेश्वर के साथ हमारा शांति हो गई है। Christ is our righteousness. मसीह हमारी धार्मिकता है। When we receive Christ, we receive righteousness. जब हम मसीह को प्राप्त करते हैं, हम धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। And by his blood, every sin in our spirit has been cleansed. और उसके लहू के द्वारा हमारी आत्मा में हर एक पाप जो है वो धुल के साफ हो गया है। In Colossians chapter 1, 19-20 says, कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसका 19-20 वचन कहता है, For God was pleased to have all his fullness dwell in him, meaning in Jesus. और परमेश्वर को ये भाया कि उसकी सारी परिपूर्णता उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में वास करे। And through him to reconcile to himself all things, the things on earth, the things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। 720 years before Christ, and Isaiah prophesied, और प्रभु यीशु मसीह के 720 साल पहले जब यशायाह ने भविष्यवाणी करी, God spoke about this peace. परमेश्वर ने इसी शांति के विषय में बात करी। How on the cross the Lord will take away our punishment and give us peace. कैसे क्रूस के ऊपर प्रभु हमारी दंड को लेकर हमें शांति दे देगा। No more punishment for us. We only have peace. अब हमारे पास कोई दंड नहीं है, सिर्फ शांति है। Isaiah 53:5. The punishment that brought us peace was upon him. इशाया 53:5 दो दंड हमें शांति लेके आया वो उसके ऊपर डाला गया। At the point of time we turn to Christ, we enter into God's kingdom, we've been given the peace of God. और जिस समय हम अपने पाप से मुड़कर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर के राज्य में हमने प्रवेश किया, हमें परमेश्वर की शांति दी गई है। Today we don't search for peace, we've been given peace. हम शांति की अब खोज में नहीं है, शांति हमें दे दी गई है। The world is searching for peace, we have been given peace. संसार तो शांति को ढूंढ रहा है, हमें तो दे दी गई है। This peace doesn't depend on circumstances. और उसकी शांति जो है वो परिस्थितियों के ऊपर आधारित नहीं है। This peace depends upon our obedience, only obedience. और उसकी शांति सिर्फ हमारे आज्ञाकारिता के ऊपर आधारित है। In John 16:33, Jesus says, यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, I've told you these things that in me you will have peace. मैंने तुम्हें ये बातें बताई हैं ताकि मुझ में तुम्हें शांति मिले। In the world you will have troubles. इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होंगे। Today's generation, more troubles. और आज जो है इस पीढ़ी में और ज्यादा समस्या है। More persecution in the last days. और अंत के दिनों में और सतावट आएगी। In the world you will have troubles. In me you have peace, the Lord says. संसार में तो तुम्हें क्लेश होंगे लेकिन मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी, प्रभु कहता है। Today we are only called to preserve that peace. We don't search for peace. We keep that peace by obedience. आज हमें सिर्फ ये बुलाया गया है कि हम उस शांति को बचा के रखें, हमें ढूंढना नहीं है, वो तो हमें दे दी गई है। Also when you accept Christ, His Spirit enters our hearts. और जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, उसकी आत्मा हमारे हृदयों में प्रवेश करती है। Christ comes and lives in us. मसीह आकर हमारे अंदर निवास करने लगता है। He lives in us forever. और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। Colossians 1:27 says, Christ in you, hope of glory. कुलुस्सियों 1:27 कहता है, मसीह जो तुम्हारे अंदर निवास करता है वो महिमा की आशा है। And we rejoice in the hope of this glory. और हम इस महिमा की आशा में आनंद मनाते हैं। We rejoice because we have joy. हम आनंद मनाते हैं क्योंकि हमारे पास ये आनंद है। It's given to us because we have the assurance of our salvation. हमें ये दिया गया है क्योंकि हमारे पास हमारे उद्धार का आश्वासन है। Let's understand peace and joy has been given to us by Christ on the cross. Today, as we live for Him, we preserve that peace and joy.
याद रखें कि हमें शांति और आनंद प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर काम के द्वारा दिया गया है, और आज जब हम इस संसार में जीते हैं हमें सिर्फ उस शांति और आनंद को बचा के रखना है। If brother Sanjeev gives me something to keep and I lose it, and he asks me, where's the car keys I gave you? I lost my car keys. Where is it? I have to explain because I lost it. और भाई संजीव ने मान लीजिए मुझे कोई चीज रखने के लिए दे दी, मान ली अपनी कार की चाबी दे दी, और फिर अगर मैं उसको खो देता हूं तो फिर भाई जब मुझसे पूछेगा मुझे जवाब देना पड़ेगा मैंने कहाँ खोया। He gave something to me, I lose it, I'm answerable to him. और उसने मुझे कुछ रखने के लिए दिया, मैंने खो दिया, तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। He's not answerable to me, I'm answerable to him. उसको मुझे जवाब नहीं देना, मुझे उससे जवाब नहीं देना, वो मुझसे पूछेगा। The Lord gave us peace. प्रभु ने हमें शांति दी है। John 14:27. यूहन्ना 14:27। Peace I leave with you. My peace I give unto you. I don't give as the world gives. Don't let your hearts be troubled. Don't be afraid. शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता नहीं है वैसी शांति नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, तुम्हारे हृदय परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। He's given us his peace. We lose it. Who's answerable to whom? और उसने अपनी शांति हमको दी है, अगर हम उसको खो देते हैं तो किसको जवाब देना पड़ेगा? किसको? We are answerable to him for losing that peace. हमें प्रभु को जवाब देना पड़ेगा कि हमने उसकी शांति को खो दिया। The most amazing thing is when we lose peace, we question God. Where's the peace you promised? I have no peace. और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब हम उस शांति को खो देते हैं, हम परमेश्वर से हम सवाल करने लगते हैं, जो आपने वायदा किया था शांति वो कहाँ है, मुझे मेरे पास तो नहीं है। We lose because we allow the devil to steal it. और हम खो देते हैं क्योंकि हम शैतान को उसे चुरा लेने देते हैं। When it takes our minds away from the Lord and the things of God, we tend to lose that peace. और जब वो हमारे मनों को परमेश्वर से दूर और परमेश्वर की बातों से दूर ले जाता है, तब वो इस शांति को चुरा ले जाता है। When you walk in the ways of God, जब आप परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे, you preserve the peace and joy of the Lord. हम प्रभु की उस शांति और आनंद को बचा के रखेंगे। A consistent walk with God means consistent manifestation of peace and joy of the kingdom of God. और परमेश्वर के साथ निरंतर चलने का मतलब है निरंतर परमेश्वर की शांति और आनंद को अपने जीवन के द्वारा हम दिखाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। In the last few days of his physical life on this earth, the Lord Jesus Christ spoke to the apostles. और अपने इस पृथ्वी के ऊपर जो शारीरिक जीवन है उसके कुछ अंतिम समय में प्रभु ने जब चेलों से बात करी, He's preparing them to be teachers of the kingdom of God and to teach the church. और वो उनको तैयार कर रहा था कि वो परमेश्वर के राज और कलीसिया के बारे में जब ये लोग शिक्षा देंगे। And he spoke to them about peace and joy. और उसने उनसे बात करी इस शांति और आनंद के बारे में। John 16:33, I've told you this thing that me will have peace. यूहन्ना 16:33, मैंने तुम्हें ये बातें बताई हैं ताकि मुझ में तुम्हें शांति मिले। John 15:11, यूहन्ना 15:11, I've told you this that my joy will be in you, your joy will be complete. मैंने तुम्हें बताया है ताकि मेरा आनंद तुम में रहे और तुम्हारा आनंद संपूर्ण हो जाए। Now, the common factor in these two verses is, I've told you this, I've told you these things. और इन दोनों बातों में जो एक बात दोनों जगह आती है वो ये है कि मैंने तुम्हें ये बोला है, मैंने तुम्हें बताया है। So when we obey him, we by default manifest the peace and joy of the Lord. तो जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो अपने आप ही हम परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं। As a church, we are called to manifest this peace and joy. और कलीसिया के नाते भी हमको बुलाया गया है कि हम इस शांति और आनंद को अपने द्वारा दिखाएं। Last evening we spoke about how as a church we are called to be holy and set apart for the Lord. कल शाम को हमने बात करी थी कि कैसे कलीसिया के रूप से हमको बुलाया गया है कि हम परमेश्वर के लिए पवित्र और अलग किए जाएं। When we're busy sharing the gospel and holy and set apart for the Lord, we speed the coming of the Lord Jesus Christ into the world second time. और जब हम पवित्रता और अलग किए हुए जीवन के साथ सुसमाचार प्रचार में लगे हुए हैं तो हम परमेश्वर के आगमन को निकट कर देते हैं। Now when we manifest this kingdom of God, what happens is the church becomes a very vibrant organism for people to come and ask us, how come you're different? How come you've got peace? और जब हम इस प्रकार से अपने जीवन के कलीसिया के जीवन के द्वारा दिखाते हैं तो कलीसिया जो है एक ऐसा जीवन भरा एक प्राणी हो जाता है। लोग आके पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर ये ऐसा कैसे है शांति आनंद। In fact, I told you the whole world is searching for peace. They don't know what they're searching. They don't know what peace is.
और मैंने आपको बताया पूरा संसार जो है शांति को ढूंढ रहा है, उनको तो मालूम भी नहीं शांति कहाँ है और क्या क्या है। The world thinks that absence of problem is peace. संसार ये समझता है कि अगर समस्या नहीं होगी तो शांति मिल जाएगी। India and Pakistan are at peace when they're not at war. और भारत और पाकिस्तान शांति से रह रहे हैं अगर लड़ाई नहीं कर रहे हैं। That's the idea of peace. लोग संसार में ऐसी समझते हैं शांति का यही मतलब है। So no problem means peace. तो अगर कोई समस्या नहीं है तो शांति है। We all have problems, so we have no peace. हम सबके पास समस्या है इसलिए सबके पास शांति नहीं है। But this peace is oneness with God. लेकिन ये जो शांति है वो परमेश्वर के साथ एकता है। That can be preserved independent of our circumstances, independent of people. और इस शांति को हम बचा के रख सकते हैं, इसका परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है, लोगों से कोई मतलब नहीं है। And when we manifest this kingdom of God, power, peace, joy, and righteousness, which is Christ, और जब हम इस परमेश्वर की शांति को प्रकट करते हैं, जो सामर्थ है, धार्मिकता है, जो मसीह से मिलती है, we'll be pleasing to God हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होंगे। and approved by people. People notice that, oh, this man is different, this lady is different. और लोगों के सामने भी हम ग्रहण योग्य हो जाएंगे, लोग देखेंगे ये बहन अलग है, ये भाई अलग है। Believe me, when the whole church is manifesting this kingdom and having peace and joy, God will make people come to us and ask us, how come you people are different? मेरा विश्वास करें, जब पूरी कलीसिया और हर भाई और बहन इस शांति और आनंद को अपने जीवन के द्वारा दिखाएंगे, तो लोग आके आपसे, आपके पास आके पूछेंगे, आप कैसे अलग हो, ये शांति और आनंद कैसे आपके पास? Set apart for the Lord also means manifesting the love of God. और परमेश्वर के लिए अलग किए हुए का ये भी मतलब है कि परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। John 13:35, Jesus says, यूहन्ना 13:35 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, by this all men know you are my disciples when you love one another. और इसके द्वारा सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे। Let's understand that today we can enjoy his kingdom as we choose to live for him. All of us are called to live for him, saved by his blood. और हम इस बात को समझ लें कि हम सब उसके राज का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि हमें बुलाहट है कि हम उसके प्रेम के अनुसार हम जिएं। Eternal life starts at the point of time we accept Christ as Savior and Lord. सनातन काल का जीवन उस क्षण शुरू होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। From that time onwards, for eternity, we have fellowship with God. We are one with God. और उस समय से लेकर अनंत काल तक हम परमेश्वर के साथ एक हो गए और हमारी परमेश्वर के साथ संगति है। So God's purpose in this generation is that all of us are holy unto God, share the gospel, and manifest his kingdom. तो परमेश्वर का उद्देश्य इस पीढ़ी में हम सब के लिए है कि हम परमेश्वर के लिए अलग हो जाएं और उसके सुसमाचार को बांटें और उसके राज को अपने जीवन के द्वारा दिखाएं। He's given us everything we need for us to fulfill this calling in our lives. और अपने जीवन में उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जो कुछ हमें चाहिए उसने सब कुछ हमको दे दिया है। He's given us his spirit, he's given us his word, he's given us faith, he's given us the body of Christ as the church for us to encourage each other. उसने हमको अपनी आत्मा दी है, विश्वास दिया है और कलीसिया के रूप में संगति दी है, सब कुछ ताकि हम एक साथ मिलकर इसको दिखा सकें। To no longer live by the basilia of this world, we live by the basilia of God, order of things of God. तो अब हम इस संसार के बसिलिया के अनुसार नहीं जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस बसिलिया, उस क्रम के अनुसार जीते हैं। Then we become spectators of how God uses us for the extension of his kingdom. तो हम दर्शक बन जाते हैं कि ये देखने के लिए कि कैसे परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहा है अपने राज की